A very good morning and welcome back, all of you. As I told you in our last class past week, that we have to do another theorem which is called as Taligan's theorem. And maximum power transfer theorem, which is left for this particular unit, we will cover after we have done the, the time dependent circuit analysis. Okay, so let us start with Taligan's theorems today. So what happens is, let us say you are given a circuit. Let's say you are given a network N1 and you are given another network N2. You're giving two network N1 and N2. And let us say that the incidence matrix of N1 and the incidence matrix of N2 are both same. So N1 and N2 are two network having same incidence matrix. So same incidence matrix का मतलब है that if you make node transformation matrix, then the node transformation matrix for both circuit N1 and N2 is same. So they have same इंसिडेंस मैट्रिक्स. आपको ध्यान है नोड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, ये बताया था मैंने आपको. यू रिमेंबर दैट? होप यू डू. Okay, so what we say is that let us say in these two network N1 and N2 there is 1-1 correspondence. There is a 1-1 correspondence between elements of N1 and elements of N2 and also between the nodes. So we call this type of relationship as incidence relationship. Incidence relationship. Okay. So what do I mean by incidence relationship is this. Given a circuit, let's say this. And given another circuit, let's say. How many elements are there in this network? 1, 2, 3, 4, 5. So over here we have B is equals to 5. Similarly, in this network also, what is B? 5. 5. Number of nodes कितने हैं? 4. So we have, this is first, second, third, and fourth. Let's say this is first, this is second, this is third, and this one is fourth. Fine. Similarly, what about this? 4. 4. First, second, third, and fourth. Are the two circuits same? Are the two circuits same? No. बिकॉज यहाँ पे सेकंड और थर्ड के बीच में एक सोर्स लगी और यहाँ सेकंड और थर्ड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा. यहाँ सेकंड और फोर्थ के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा, या सेकंड और फोर्थ के बीच में एक सोर्स लगी है. तो दीज टू सर्किट मे बी मे नॉट बी सेम. तो सेम तो नहीं है, कुछ एक चीज सेम है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, लेट मी कॉल दिस वन एज माई फर्स्ट एलिमेंट और एलिमेंट 1. तो मैं यहां पर भी बोल रहा हूं यूजिंग रेड कलर, लेट मी स्पेसिफाई दिस इज योर ब्रांच 1. तो दो ब्रांच हो गए, एक ब्रांच इसकी 1, एक ब्रांच इसकी 1.
एक ब्रांच इसकी है और एक ब्रांच इसकी 2, एक ब्रांच इसकी 3 है. Similarly, we have a branch 3 over there. ये रही आपकी 4th, ये रहा हमारा 4th यहाँ. This is let's say your 5th और यहाँ ये 6th है. So we have actually specified the branches of the elements in the two figures, in the two networks. This is V1, V2, V3, V4, V5. इसको 5 बोलना चाहिए ना, आप बीच में बोलते नहीं है. It should be V5. V1, V2, V3, V4, V5. Now with respect to, let me call that this is our reference node and this is our reference node here as well. We will not consider, चलो अभी reference मानते नहीं है, 0 होगा, otherwise V4 will anyways be 0. So आप बता सकते हैं what is going to be the node transformation matrix. So if I am going to write for this particular circuit, if suppose I have to write what is V1, V2, V3, V4 and V5 with respect to the node voltages, V first, V second, V third, V fourth. अभी V fourth को 0 मान लेते हैं, चलिए. So what would be V1? V1 किसके बराबर है? V first. V first. V second किसके बराबर है? या V2? First minus V second. The convention you can take accordingly. But let me take it like this. What about V3? V second के बराबर है. What about V4? V second minus V third. What about V5? V third. V third के बराबर है. So for this particular circuit, if you will make the node transformation, so what you will get is this. You have Vn, the node voltage or the branch voltages, let me call it as Vb, which will be equals to some matrix V first, V second, V third. Okay, so this will be 5 by 3, this will be 3 by 1, then we will get 5 by 1. So we just have to fill it. 1 0 0, 1 minus 1 0. My voice may be slow because your connection is not that good. आपका network strength अच्छा नहीं होगा. I don't know who that was. बाकी अक्षत, मोहित, आप लोगों को आवाज लैग करके तो नहीं आ रही है? No, sir. Okay. No, sir. The correction might be slow that way. Is it? Okay. So this is 1 minus 1 0. What about next? 0 1 0. Then what else? 0 1 minus 1, 0 0 1. We call this matrix as node transformation matrix और इसी का दूसरा नाम है इंसीडेंस मैट्रिक्स. ओके, इंसिडेंट एनी एलिमेंट, हमें नहीं पता कि भाई ये क्या एलिमेंट है. एनी एलिमेंट विल बी इंसिडेंट any element is incident between two nodes. Any element is incident between two nodes. अगर हम यहाँ पे फोर्थ वाला भी कंसीडर करते, यानी यहाँ पे if I had to extend V fourth as well, हालांकि हमने उसे रेफरेंस मान के 0 बना दिया था, तो हमें V4 भी लिखना पड़ता, बिकॉज अगर आप यहाँ देखें V1 जो है वो V फर्स्ट माइनस V फोर्थ है. वो तो हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज की हम रेफरेंस को ग्राउंड मानते हैं इसलिए उसे हटा दिया था. V second is also V fourth. Okay, V fifth is also V second minus V four. तो फिर हमें V4 भी ऐसे इंक्लूड करना पड़ता. यहाँ -1, ये 0, ये -1, ये 0, ये -1. तो लाइकवाइज आप देखें, अगर इस मैट्रिक्स को अच्छे से देखें तो इसकी हर एक रो में एक +1 है, एक -1 है. दिख रहा है आपको? हर एक रो में 2 से ज्यादा 1 नहीं होंगे और एक 1 के आगे माइनस साइन लगा होगा, एक 1 के आगे प्लस साइन लगा होगा. If you consider that reference node is also is taken into account while making node transformation, so you see this matrix, actually इसी matrix को V transpose या A transpose कहा जाता है. A transpose matrix. तो A क्या होगी अगर A transpose ये है तो वो what would be A? बता सकते हो A क्या होगा फिर?
So this is called as your incidence matrix. Okay, incidence matrix का transpose node transformation देता है. Incidence matrix transpose gives you node transformation. हालांकि incidence matrix ये होती है. तो आपको पहले मैंने बताया था when we would write KCL और KVL, तो we take transpose of some matrix, circuit matrix का transpose, incidence matrix का transpose. I hope you remember that. अब देखें इसमें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में अगर आप कॉलम वाइज कंसीडर करें, अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में अगर आप कॉलम वाइज कंसीडर करें तो हर एक कॉलम में एक 1 है, एक -1 है. देखिए प्लस एक और चीज है, एवरी रो रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट, सॉरी एवरी रो रिप्रेजेंट्स द नोड. तो ये नोड फर्स्ट हो गई, ये नोड सेकंड, नोड थर्ड, नोड फोर्थ. और एवरी कॉलम रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. अब हमें ये पता चल गया कि अगर आप देखें पहले एलिमेंट को देखें तो फर्स्ट एलिमेंट इज एक्चुअली वी फर्स्ट माइनस वी फोर्थ. यहां से वी फर्स्ट माइनस वी फोर्थ. इफ यू गो बाय सेकंड एलिमेंट इज v1 माइनस v2. इट इज देयर. तो ये जो मैट्रिक्स आई इसे बोलते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स. ठीक है, टेकन इनटू कंसीडरेशन the all the nodes and representing branch voltages in terms of node voltages. हालांकि अगर इनकी सारी रोज का सम लें आप दें, अगर मैं कहूं कि टेक सम ऑफ ऑल रोज, तो रैंक पता चल जाती है. इफ यू टेक सम ऑफ ऑल रोज तो आप लीजिए कितना आएगा, 0. तो इसलिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है लीनियरली, तो वी विल हैव टू जस्ट नेग्लेक्ट वन रो जिसे हम रेफरेंस मानते हैं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. लेकिन ये हमारी तीसरी चौथी यूनिट की बात है. फिलहाल के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होती है ये समझ आ गया होगा आपको. ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस सर्किट, द सेकंड सर्किट, कैन यू राइट द इंसिडेंस मैट्रिक्स? लेट अस ट्राई टू राइट फॉर दिस वन. लेट मी यूज रेड पेन. व्हाट अबाउट v1? v first minus v fourth. What about v2? v first minus v second. What about v3? v second minus v fourth. What about v4? v second minus v third. v5 v third minus v fourth. ठीक है. और दरअसल प्लस माइनस साइन की वजह से एक और चीज भी पता चलती है. आई विल जस्ट टेल यू दैट इन अ मोमेंट. अगर अब इसका ए मैट्रिक्स लिखें तो वो क्या होगा, क्विकली बताइए. देयर विल बी 4 rows and 5 columns. So what it will be? It seems 1 0 0 minus 1. It would be 1 minus 1 0 0. फिर होगा 0 1 0 minus 1, 0 1 minus 1 0, and then it would be 0 0 1 minus 1. It would be something like this, where every row is representing the node, every column representing an element. Fine. So अगर ये A मैट्रिक्स किन्हीं दिए गए दो सर्किट के लिए सेम हो जाती है तो हम ऐसे सर्किट को बोलते हैं that these two network or circuits have same incidence matrix. अब मैं ये बता रहा था आपको, हमें करंट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा. दरअसल एक आप अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसीडर करें तो ये बता रहा है कि एक एलिमेंट किन्हीं दो नोड्स के बीच में है. आई डोंट नो व्हाट दिस एलिमेंट इज, लेट मी कॉल दिस एलिमेंट एज 1. अब ये एलिमेंट कौन सी दो नोड के बीच में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से. इफ आई एम कॉलिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट एलिमेंट 1 ओनली, First and fourth. first and fourth. Now the direction of current is such that अगर नेगेटिव साइन है सो इट इज कमिंग इन, और अगर पॉजिटिव साइन है सो इट इज गोइंग आउट. तो फर्स्ट से गोइंग आउट होगा और फोर्थ में कमिंग इन. तो नेगेटिव साइन के लिए इट इज कमिंग इन एंड फॉर पॉजिटिव साइन इट इज गोइंग आउट. इट्स लाइक दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. सिंपल. तो आप करंट का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो गिवन इन अ सर्किट of
two correspondence, yeah, two network N1 and N2, and there is a 1-1 correspondence between the elements of N1 and N2. यानी फर्स्ट और फोर्थ के बीच में एक एलिमेंट है, भाई यहाँ पे भी है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी है. तो इट्स लाइक दिस. अगर आपके पास 1-1 correspondence है between the elements of N1 and N2, then Talingen's theorem says that summation of Vk dot Ik, summation of Vk dot Ik will be equals to 0, where let's say Vk and Ik are voltages, to be specific, branch voltages and branch current. So Vk is branch voltage and Ik is branch current of, let's say, circuit N1. This is first point of Talingen's theorem. It says that Vk dot Ik equals to 0. Second, it also says that summation Vk cap dot Ik cap equals to 0, where branch voltage Vk dash और ब्रांच करंट है आपका Ik डैश, और ये है मान लीजिए आपके N2 के लिए. तो दो स्टेटमेंट ये हुए दैट द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, नहीं, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट विच एक्चुअली सिग्निफाइज पावर. अगर 12वीं क्लास में आपने पढ़ा हो, VI सिग्निफाइज व्हाट? पावर डिसिपेटेड. तो समेशन ऑफ Vk डॉट Ik इक्वल्स टू 0. इसी तरीके से दूसरे सर्किट के लिए समेशन ऑफ Vk डॉट Ik इक्वल्स टू 0. तो दिस आल्सो सेज दैट द सम ऑफ नेट पावर, यानी पावर डिसिपेटेड एंड पावर ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड, और पावर डिलीवर्ड और पावर डिसिपेटेड का अगर सम करें तो वो सम 0 आएगा. तो एक आप साइड स्टेटमेंट ये ले सकते हैं, पावर डिसिपेटेड एंड पावर, इसे कहते हैं लेट्स से पावर डिलीवर्ड, एंड PA पावर एब्सॉर्ब्ड बराबर होती है. तो दिस एक्चुअली फॉलोज फ्रॉम व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जानते हैं सब कि पावर जितनी दी जाएगी उतनी कंज्यूम होगी. अब वो हीट के फॉर्म में हो रही है, करंट के फॉर्म में हो रही है, व्हाटएवर, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नीदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. सिमिलरली पावर के साथ भी ऐसा ही है. तो समेशन ऑफ Vk डॉट Ik इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Vk डॉट Ik डैश इक्वल्स टू 0. ये आधी टेलिंगेंस थ्योरम है, या टेलिंगेंस थ्योरम. अभी आधी टेलिंगेंस थ्योरम बची. तो दो स्टेटमेंट हमने देखे क्या. तो एक ये समझ लीजिए आप दैट जो N1 है इसमें मैं बोल रहा हूं हमारे पास करंट है Ik और वोल्टेज है Vk. वहीं जो N2 है उसके लिए मैं बोल रहा हूं करंट इज Ik कैप और वोल्टेज इज Vk कैप. तो जो वोल्टेज N2 में फ्लो होंगे उन्हें Vk कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वोल्टेज N1 में है उसे Vk से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये तो नेचुरल था. इट वाज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ लेट अस मूव अहेड. तो एक स्टेटमेंट हुआ दैट समेशन ओवर K Vk Ik इक्वल्स टू 0. दूसरा स्टेटमेंट हुआ समेशन ओवर K Vk कैप Ik कैप इक्वल्स टू 0. तीसरा स्टेटमेंट जो थोड़ा सा अलग है, जो किसी और वजह से हो रहा है, समेशन ओवर K Vk Ik cap equals to 0. Okay, and there is fourth one as well, summation over K Vk cap Ik equals to 0. ऊपर के दो जो हमने बताए, these are because of law of conservation of energy, क्योंकि सेम सर्किट की बात हो रही थी. वहीं जो नीचे के दो हैं, these are consequences of correspondence between the incidence matrix of the two networks. तो ये जो नीचे की दो postulates या points लिखे हैं, these are because of the correspondence between the elements of N1 and N2. Okay? तो ये आपके मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गए, और आपसे ज्यादा से ज्यादा ये वेरीफाई या प्रूफ करने को ही पूछा जा सकता है एग्जाम में.
For a given circuit, verify summation vk ik equals to 0. For a given circuit, verify summation vk dash ik dash equals to 0. और ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग सर्किट दे दिए और हम दो अलग अलग सर्किट्स के लिए आपसे कहें कि नाउ वेरीफाई द टेलिंगेंस थ्योरम. फाइन. सो इसे करेंगे कैसे? हाउ वुड बी डिटरमाइन, हाउ वुड बी सॉल्व दैट? सो एक चीज लिखिए, दैट पावर डिलीवर्ड is equal to power consumed. और अभी तक हमने केवल दो तीन चीजें ही सीखी. क्या? सोर्स, पैसिव एलिमेंट. तो कंज्यूम कौन सी एलिमेंट करते हैं पावर को? बताएं. व्हाट विल कंज्यूम पावर? टेल मी. So Passive elements. only resistances consumes power. I square R losses. Only resistances consumes power. बाकी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस तो दे रिमेन्स सेम. उनके अक्रॉस कोई पावर डिसिपेट नहीं होती है. तो मार्क दिस पॉइंट दैट ओनली रेजिस्टेंसेस कंज्यूम्स पावर. ओके. So power delivered is equals to power consumed, and only resistances consumes power. Fine. Also, if you go by this summation vk dash dot ik, summation vk dash dot ik या vk cap dot ik, भले ही ये एक सर्किट पावर नहीं है लेकिन डायमेंशनली तो पावर है ना. It is dimensionally power. So Telingen's theorem is a consequence of KVL and KCL only. Is a consequence of KVL and KCL only. Component equations have no role to play. Component equations have no role to play. See, यहाँ पे हमने component की जगह ही बदल दी थी यहाँ. But still I am saying that the Telingen's theorem will actually follow, will actually be satisfied, just because their incidence matrix is same. तो क्योंकि केवल और केवल KVL और KCL का consequence है Telingen's theorem, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि component कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है that how many components or what all components are there. The only thing is that you have to consider that the incidence matrix of the two is same. A is equals to A cap. This is what we require. A is equals to A cap is needed. See? Now, because you know that, what is KCL? Kirchhoff's current law क्या होता है? बताएं? What is KCL? Sum of all the currents at a particular node coming in, going out is equals to 0. That's it. And उसी KCL का दूसरा representation है. हमने थोड़े दिन पहले शायद आपको बताया भी होगा. I don't know how many of you remember that. I also told you at least last time that when you are writing node transformation equation, we got our circuit matrix. So we wrote it something like this, that let me just tell you where it is. Yeah. So I will tell you what I actually mean. So पहली चीज ये देखिए that हमारे पास वोल्टेज वेक्टर है. सो V इज नॉट जस्ट V, V इज Vn, which is V1 V2 से लेकर VB तक. फाइन. मानते हैं हमारे पास अगर B ब्रांचेस हैं तो हमारे पास जो ब्रांच वोल्टेजेस है वो V1 V2 VC लेकर B तक होंगे. इसी तरह से जो करंट वेक्टर होगा इट विल आल्सो बी हैविंग I1 I2
I3 से लेकर IB तक, V1 V2 V3 से लेकर VB तक, I1 I2 I3 से लेकर IB तक. Fine. Now what I'm saying is that summation of V dot I equals to 0. Summation of V dot I equals to 0. इसका कहने का दूसरा मतलब ये हो सकता है, if you are taking this vector Vn, I भी नहीं बोलते हैं, इसे भी In ही बोलते हैं, ठीक है? या ये सबस्क्रिप्ट इनमें से हटा दीजिए, let us keep just V and keep this as I. So if I have to take summation of V dot I, इसकी डायमेंशन क्या है बताएं? What is the dimension? B rows 1 column, B cross 1. What is the dimension of this particular vector? B cross. इसकी भी डायमेंशन B cross 1 है. अब दोनों का कैसा प्रोडक्ट करें कि एक 1 cross 1 के आंसर आ जाए, and this is just 1 cross 1. How would you take the product of the two? तो लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है. Doing so, what we just want is हमें करना है V1 I1 plus V2 I2 plus V3 I3 and so on plus VB IB. तो ऐसा करने के लिए it is just equals to take transpose of V multiply it with I. Take transpose of V multiply it with I. ठीक है? Because when you would take V transpose, फिर V transpose करने के बाद dimension क्या हो जाएंगी इसकी? 1 cross B. और 1 cross B को आप B cross 1 से multiply करेंगे, then what you will get? It would be simply 1 cross 1. So given vectors of voltage and current V1 से VB और I1 से IB, if you take transpose of V multiplied with I, you will get summation of V dot I. And according to Tullinger's theorem, we say that summation of V dot I equals to 0. यानी मैं ये बोल रहा हूँ that V transpose into I will be equals to 0. This is what I'm saying. As per according to Tullinger's theorem, V transpose into I is equals to 0. ठीक है? Now, I believe that you must be remembering, अगर मुझे नोड वोल्टेज लिखने थे या मुझे वोल्टेज लिखने थे इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज, तो ब्रांच वोल्टेज मेंशन करना चाहता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज, तो कैसे लिखते थे? हाउ डू वी राइट इट? कैन यू टेल मी हाउ डू वी राइट इट? बताएं. टेल मी. A ट्रांसपोज VN, ऐसे ही तो लिखते हैं बेटा. ये हमारे ब्रांच वोल्टेज है, अभी तो थोड़ी देर पहले ही सीखा. क्या वो आवाज नहीं आ रही? कोई दिक्कत है क्या? Okay, let me just continue. So we have A transpose into Vn. We call this as node transformation. We call this one as node transformation. Let me just stop this sound. Okay, so we call this as node transformation. Now, what I'm saying is V का transpose into I equals to 0. ये बता रहा हूँ. So actually, what was V? हमने कहा अभी V is equals to A transpose Vn. तो अगर मैं V transpose लूँ तो V transpose क्या हो जाएगा? V transpose will be A transpose Vn का whole transpose. अब A transpose Vn का whole transpose क्या होगा? ये अपनी लीनियर अलजेब्रा में आपने सीखा है, बताइए. Tell me. Vn transpose A into A. So Vn transpose into A. Now put this value in this equation. So V transpose I is nothing but equals to Vn transpose A into I equals to 0. अब आप जानते हैं कि ये Vn transpose तो नॉन जीरो वेक्टर है, सही बात है ना? So our Vn transpose is not equals to 0. तो बची बस एक चीज, that AI should be equals to 0. And this is sum of all currents at a particular node coming is equals to 0. Coming and going out is equals to 0. So it follows from
what we say Kirchhoff's current law. ठीक है, अब कहेंगे आप कि सर वो दूसरा वाला फिर कैसे प्रूफ करेंगे? हाउ वुड बी प्रूव द सेकंड वन, जिसमें हमारे पास था v cap transpose into I is equals to 0. v cap transpose into I is equals to 0, इसको कैसे प्रूव करेंगे? सो v cap transpose into I is equals to 0 प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें दैट v किसके बराबर होगा? a cap, या हम कहें v cap किसके बराबर होगा? इट वुड बी a cap transpose v cap n, करेक्ट? a cap transpose v cap n. अगर ये ATVN के बराबर था तो यहाँ केवल कैप लग जाएंगे. तो v cap transpose फिर किसके बराबर होगा? What it will be equals to? Vn cap transpose Vn A. cap transpose और A cap. Don't forget the cap. अब अगर इस वैल्यू को using this and putting it in this, what will happen now? So it would become Vn cap transpose A cap into I is equals to 0. अब ये तो आप जानते हैं, चलो ठीक है, Vn तो 0 नहीं होगा, तो Vn cap transpose is not equals to 0. This is we know for sure. But A cap I may not be equals to 0. दीदी बस 5 मिनट रुकिए, वो मत चलाइए, ठीक है? A cap I may not be equals to 0, है ना? This may be equals to 0, may not be equals to 0, because A cap was not the incident matrix of the N1 network. It was the incidence metric of N2 network. तो अब कैसे? How will you prove that this is going to be 0? Just because we consider A cap equals to A. Okay. अभी थोड़ी देर पहले in our circuit we took A cap is equals to A, right? And only because of the consequence of taking the incidence of the two matrix or the incidence matrix of the two network to be same, we are getting A cap I equals to 0. Okay. So this is how, or this is what the Tellinger's theorem tell you all about. The summation of Vkik with correspondence, 1-1 correspondence between the elements of N1 and N2 is going to be 0. Done? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं. फिलहाल हम ये 1-1 correspondence वाला एग्जांपल आगे के लिए छोड़ देते हैं. We will take a very small example. It is on, let me just open it. Copy that. Just take, we have to just prove that summation of Vkik is equals to 0. बस इतना प्रूव करना है. तो it is one of the part of the Tellinger's theorem. और सर्किट दिया है ये. This is 4 amperes. This is 4 volts. This is 2 ohms. This is 1 ohm. This is given that the voltage across this particular element is 2 volts and nothing else is given. एक और चीज दी है कि जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, this current is of 3 amps. ये जो करंट है वो 3 amps, और कुछ नहीं दिया है. And you have to prove that Vkik is equals to 0. Remember, whenever you have to take in account, or when you are proving Tellinger's theorem, use either passive conventions or active conventions for all elements. And this is an important thing. अगर आप अलग अलग कन्वेंशन यूज करेंगे एक्टिव और पैसिव सोर्सेस और एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के लिए, देन यू मे नॉट बी एबल टू प्रूव इट. फिर आपको पावर डिसिपेटेड इज इक्वल्स टू पावर डिलीवर से जाना होगा. बट डोंट वरी अबाउट इट. मैंने कहा आपसे यूज ईदर पैसिव कन्वेंशन फॉर ऑल एलिमेंट्स और यूज एक्टिव कन्वेंशन फॉर ऑल एलिमेंट्स. ओके, I said use either passive convention for all elements or use active convention for all elements. तो आप बताएं यहाँ पे हम कौन सा convention use करें for all elements? That is use passive convention for all elements. Fine. Let us use passive convention for all elements. Now,
you simply have to tell me, because this is the same branch, what is the voltage flowing through this 1 ohm resistance? Or what is the current flowing through this 1 ohm resistance? अगर ये same branch है. 4 ampere. This is 4 ampere, exactly. So the current flowing is 4 ampere. We will apply signs later. पहले हम current decide कर लेते हैं. अगर यहाँ दे दिया गया है that the 3 ampere current is flowing in it, तो बचा हुआ यहाँ आएगा. तो 4 में से 3 चले गए, कितना बचा? 1 ampere. ठीक है. अब now you see current इस direction में flow हो रहा है और voltage का direction plus to minus दिया है. तो this is a passive convention and we will use such a convention or such passive convention for all things. तो हमारे पास अब बताएं, अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर ओम का है, 4 एम्पियर का है और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस? 4 व्हाट? वोल्ट्स. ओके, 4 वोल्ट्स. सिमिलरली ये आपको अगर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एंड दिस इज द वैल्यू हैविंग 2 ओम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट्स. तो हम लोग नामकरण कर देते हैं. लेट अस डू द नेमिंग. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. अब ये जो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, करंट तो हमें पता है, बट वी कैन अप्लाई Kirchhoff's voltage law and find out what is going to be the current across it, and you can easily do that. I will let you know what I'm actually meaning. तो सबसे पहले देखें हमें क्या क्या चीज पता है. क्या हमें V1 पता है, I1 पता है, V2 I2 पता है, V3 I3, V4 I4, V5 I5. क्या क्या पता है? Done. So V1 पता है हमें. What is V1? No, we don't know, but you can find out V1. How? अगर आप मान लें there is ये वोल्टेज सोर्स होती, कुछ होता, मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1. तो अगर आप यहां से ऐसे लूप चलाते हैं तो what would have been the Kirchhoff's voltage law in this particular mesh? देखें, बाकी सब छुपा लें. V1 should have been equals to V2 plus V3 because this is how it moves. Minus से plus, plus minus, plus minus. Correct? यही होता? बताएं. अभी आप कहेंगे कि सर ये पैसिव कन्वेंशन क्यों नहीं लिया? We will come back to it. लेकिन जितना बताया गया था पहले उससे बताएं. It would be what? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? V2 plus V3. Which is 4 वोल्ट और 2 वोल्ट, कितना हुआ? 6 वोल्ट. I1 दिया हुआ है 4 एम्पियर्स. V2 we know it is 4 amperes. V2 is 4 volts. I2 is 4 amperes. V3 is 2 volts. I3 is 1 ampere. What about V4? V4 is 6 volts. I4 is 3 amperes. I5 कितना है? I5 कितना है? 3 amperes. I5 is 3 amperes. And what about V5? अभी देख के पता चल रहा है ये तो 4. Now as I told you, 4 ये जो है वो एक्टिव कन्वेंशन के हिसाब से है. जहां जहां सोर्सेज हैं उनका पैसिव कन्वेंशन यूज कीजिए. पैसिव कन्वेंशन मतलब या तो आप वोल्टेज का डायरेक्शन उल्टा कर दें या करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दें, अपने आप पैसिव कन्वेंशन हो जाएगा. सो इफ आई एम सेइंग दैट V1 is equals to माइनस से प्लस ऐसे, तो आपको एक्चुअली V1 पे एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा और V4 पे एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा. दिस इज इट. क्यों? क्योंकि या तो आप केवल पैसिव कन्वेंशन यूज कर सकते हैं या केवल एक्टिव कन्वेंशन. तो राइट अकॉर्डिंगली. लेकिन सब कुछ लिखने के बाद में अगर आपकी सोर्सेज दी गई हैं तो सोर्सेज को अकॉर्डिंगली वेरीफाई कर, चेंज कर दो. कैसे? या तो एक्टिव कन्वेंशन यूज करो सबके लिए या पैसिव कन्वेंशन. अगर आप पैसिव कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो सोर्सेज को चेंज करेंगे. आप पूरे के लिए एक्टिव कन्वेंशन यूज कर रहे हैं तो ये सिंक्स या फिर रेजिस्टेंसेस को बदलेंगे. ओके, नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज V1 into I1. कितना हुआ ये? -24.
माइनस ऑफ 24 प्लस V2I2 कितना हुआ 16 प्लस V3I3 कितना हुआ 3 V4I4 कितना हुआ 18 करेक्ट माइनस 4 3 सर So हाँ हाँ बताइए V3I3 will be 2. V3I3 तो 2 ही है हाँ 2 यस यू आर राइट इट वुड बी 2 बाकी तो गलत नहीं है कुछ नहीं No, sir. नाउ यू टेक द सम ऑफ इट देखिए 16 और 2 18 18 और 18 36 तो ये तो प्लस 36 हो गया माइनस 12 माइनस 24 कितना हुआ माइनस 36 इक्वल्स टू 0 अच्छा तो ये आपने प्रूव कर दिया फॉर अ गिवन सर्किट Vk into Ik का सम इज इक्वल्स टू 0 तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है या फिर एक अलग तरीका भी दे सकते हैं अभी आप डरिएगा नहीं मैं आपको केवल बता रहा हूं कि इन दिस वे आल्सो वी कैन आस्क इन योर एग्जाम दैट प्रूफ लेट मी जस्ट गिव यू द सर्किट्स फर्स्ट सर्किट है ये दो अभी तक हम केवल रेजिस्टेंसेस ही देख रहे थे अब क्योंकि आपको बता दिया कि केवीएल केसीएल का रोल है ये रेजिस्टेंसेस वगैरह का या इम्पीडेंस क्या है कैसे हैं इसका कोई रोल नहीं है ये मान लीजिए N1 है ये N2 है देखने में ये सेम नहीं लग रहे है ना इनमें नोड अलग अलग हैं इनमें इंसिडेंस मैट्रिक्स अलग है लेकिन इनकी इंसिडेंस मैट्रिक्स को सेम बनाया जा सकता है एक ट्रिक है उससे ठीक है तो ये N1 है ये N2 है इसमें कितने एलिमेंट हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 5. सो इसको हम नाम दे देते हैं this is element 1 2 3 4 5 no wrong how many elements are there in this circuit only 4 अब ये तो देखने में लग रहा है कि 1-1 correspondence नहीं है so what we have to do is we have to make 1-1 correspondence in between these two ठीक है वो हमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा और ट्रिक क्या है ट्रिक है लिख लें क्रिएट ओपन एंड क्लोज सर्किट्स as many as you want such that A becomes equals to A cap without changing the structure तो क्रिएट ओपन एंड क्लोज सर्किट्स अपनी तरफ से ओपन और क्लोज सर्किट्स ले लेंगे हम इसमें इन दोनों में और वो क्लोज और ओपन सर्किट ऐसे लेंगे कि बाकी सारे एलिमेंट्स का वोल्टेज और करंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि हमें ये मिल सके A is equals to A cap and now how will we do that इसको दोबारा बनाएं मैं बताता हूं कैसे लेना है आपको एक सर्किट बनाया ओके मैंने था दोनों सेम नहीं है बट क्या कहा है यू कैन क्रिएट ओपन एंड क्लोज सर्किट एज मेनी एज यू वांट वही करते हैं देखें सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसे कोई पैरेलल में एलिमेंट नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक पैरेलल में एक ओपन सर्किट क्रिएट कर दूंगा अब देखो इस ओपन सर्किट की वजह से क्या बाकी सारे एलिमेंट्स का कुछ वोल्टेज या करंट अफेक्ट होगा बताएं No. इट विल नॉट बी अफेक्टेड भले ही हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 0 है बट बाकी कुछ अफेक्ट नहीं होगा तो ये सारी चीजें सेम हो गई अब क्या है इसमें अगर देखें गौर से तो एक एलिमेंट ये तो है लेकिन ये एलिमेंट गायब है तो आप क्या करें यहाँ पे क्लोज सर्किट मान लिया दिस इज अ क्लोज सर्किट और इसको हम एलिमेंट ट्रीट करेंगे इस एलिमेंट के अक्रॉस करंट तो होगा वोल्टेज कितना होगा 0. 0 तो पावर डिसिपेटेड विल बी इक्वल्स टू 0
एक्चुअली इसी तरीके से अगर हम इस ब्रांच में देखें तो इस ब्रांच में एक एलिमेंट की बजाय यहाँ 2 हैं, तो क्या करें? टेक अनदर शॉर्ट सर्किट। तो ये ओपन और क्लोज सर्किट की कॉम्बिनेशन लेकर वी कैन क्रिएट अ कंडीशन, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देंगे, दोनों की इंसिडेंस मैट्रिक्स सेम हो जाएगी। अब हम नामकरण कर सकते हैं। आई विल कॉल दिस एज 1, दिस एज 2, दिस एज 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कहलाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3, ये 4 कहलाएगा, ये एलिमेंट 5 और ये 6 कहलाएगा। ठीक है, जहां पर हमने कई सारी चीजें ले ली हैं। अगर इस सर्किट के लिए देखें तो जो I3 है उसकी वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3? 0। और यहाँ पर अगर इस सर्किट के लिए देखें तो जो V4 कैप है उसकी वैल्यू कितनी है? 0. और V5 कैप की वैल्यू कितनी है? 0। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब हम जो है, अगर आपको सॉल्व करना आता, वैसे आप लगा सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं छोटी छोटी, जैसे Q इज इक्वल टू CV से इसके अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट पता किया जा सकता है, I इज इक्वल टू C dVC by dt, या L di by dt इज इक्वल टू V, ऐसे पता कर सकते हैं। बट डोंट वरी अबाउट इट, जब हम आगे टाइम डोमेन एनालिसिस सीखेंगे तो इस तरीके के सर्किट पर लौट कर आएंगे। तो जब आप अभी केवल आपको रेजिस्टेंसेस अगर होते तो सॉल्व कर लेते बड़े आसानी से, है ना, लेकिन रेजिस्टेंसेस नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व करने में। करेक्ट? तो दिस इज वन रीजन हम पहले टाइम डोमेन एनालिसिस चीजें सीखेंगे, एंड तब ये टेलिंगेंस थ्योरम का ये वाला पोर्शन जिसमें हम कॉरेस्पॉन्डेंस भी देखते हैं, वी विल कम बैक टू इट। ओके, अभी भी मामला यही है दैट इफ यू टेक V1 I1 and keep on adding it till V6 I6, it will be 0। और यहाँ पे अगर आप V1 कैप I1 कैप लें, V2 कैप I2 कैप लें, एंड यू कीप ऑन ग्रोइंग, V6 कैप I6 कैप पे जाएं, इट विल बी 0। ओके, और दूसरी चीज और है दैट इफ यू टेक V1 एंड I या VK एंड IK कैप, इनका सम ये भी 0 आना चाहिए। तीसरी, if you take VK cap and IK, this should also be 0. The summation is running over K. Okay, so this is the Taligans theorem. ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, यानी ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि दो सर्किट्स के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे क्रिएट करते हैं, और अगर सिंगल एलिमेंट दिया है या सिंगल सर्किट दिया है तो उसके लिए Taligans theorem के क्या महत्व है। It simply follows from law of conservation of energy, and it actually is the consequence of KVL and KCL. That's it. That's it for today's class. जो बताने की कोशिश की, कन्वे किया, वो समझ आ गया आपको? Done? Okay, so this is it for today's class. We covered Taligans theorem. From next time onwards, we will take a few examples on the utility of the theorems or the network theorems which we have done, and that we would do tomorrow. And on 21st, you have a test, right? That's it. So in test, we won't be asking you questions from Taligans theorem, but definitely जो Saturday तक cover किया और जो Friday तक cover किया, that would be asked. That's it for today's class. Thank you so much, all of you.